चलो भाई। First question, which type of testing is typically conducted after modifying or upgrading a software component to verify the modified component working correctly and the component not damaged? Regression testing. Consider an organization whose purpose is in testing to show software failure. However, looking for failures is considered as a negative activity which puts testers in an adversarial relationship. This is your level 2. इसकी पूरी theory है. Complete theory. Leave it. Which type of edge in a depth first tree from U to an ancestor V? Back edge. क्योंकि उसका ancestor है तो U just to ancestor V. हाँ, so it's like U to V, मतलब ऐसा है वो. U to ancestor V. This is a back edge. Now, if A and B accessing a common dictionary data, they are using shared data coupling. Because they use a common data. Okay. Now, each vertex in an in degree equal to x and out degree equal in a DD path in the numerical value of x. Any idea of this? DD path क्या है? DD path is again decision to decision path. In degree तो each vertex within degree 0 and a DD path. Dinkar bhai, any idea? भाई एसटी का तो मेरा डब्बा गोल है. Okay. ठीक है. मैं क्विज के पहले ही देख के गया था, काम हो गया था बस. Let's consider it. Sequence of execution within a program flow graph that starts and ends at a decision point. Like an if statement encompassing all the code executed between those two decisions. Essentially, it's a path through the code where every step is either a decision point or an action directly related to a decision. ठीक है, just keep it one. छोड़ दे. Just remind it one for now. Okay. Now, if the values passed to function x and y with the variable c and b respectively, then in line number c we want to reach the line number 6. To reach the line number 6, we have to satisfy these two conditions. एक ये वाला if, एक ये वाला if. ठीक है. So the first if x minus y is less than 0. For the second if, condition है y double equal to 0. But y plus plus हो चुका है ऊपर. So it should be y plus 1 double equal to 0. ठीक है. Now a minus b is less than 0 and then b plus 1 double equal to 0. ये देखो. Again the same way of writing. A minus b अगर less than 0 होगा तो अरे obviously a minus b should be greater than 0 ना? sorry my bad. तो obviously a बड़ा होगा. a greater than b. हाँ, a greater than b. ठीक है. And then same thing. ठीक है. Now अभी इसमें देखना है क्या क्या है ऑप्शन में. A B ओके even odd. ठीक है. तो लेट्स सपोज तुम यहाँ पे आए, ये तुम्हारी फाइनल स्टेट है, तो इट विल एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग पहला. दूसरा ये पाथ चूज किया तो डबल ए. देन ये पाथ चूज किया ए बी नहीं, कुछ नहीं होगा. नहीं, यू कैन चूज ए बी बी तो वापस. पर S2 से S0 तो कोई एज नहीं है ना? तो सॉरी, अरे यार सॉरी. ठीक है, तो ए का भी बैक एज सिर्फ यही है ना इस पे. जस्ट थिंक, अभी इसको अगर फाइनल नोड पे वापस आना है तो वापस आने के लिए अगर वो यहाँ S2 पे गया
तो वापस नहीं आ सकता सीधे। तो बस इतना ग्राफ मेनली इतना सा ही है, फिर इतना सा। तो इट कैन एक्सेप्ट इवन नंबर ऑफ एज, राइट, करेक्ट। इवन नंबर ऑफ एज, ठीक है। नाउ एक प्राइम पाथ है 1 2 4 5, so it should be like 1 2 4 5. Identify a detour but not a side trip, ठीक है। साइड ट्रिप में होता है कि हम 1 2 4 5 अगर आता है इसमें ये ऑप्शंस में, तो उसको कंसिडर नहीं करते। डी टूर में उसको कंसिडर करते हैं, जब डी टू में इनमें से कोई आना चाहिए, तो स्टार्टिंग या तो एंडिंग वाला, ठीक है। नाउ 1 2 4 2, तो 1 2 4 2 4 5 1 2, अरे एक सेकंड, ये वो बनाने दो ग्राफ यार इसका। 1 2 4 5 एक प्राइम पाथ है, लाइक दिस। 1 2 4 5 ये डायरेक्ट ऑप्शन है। नाउ 1 2 3 ये ऐसे एंड ये ऐसे, 3 2 4 then 2 then 3 then 4, so it's like this. Now 1 2 4 2 1 2 4 2 4 and then 5. It's not a detour, it's a detour na. 1 2 1 2 4 1 2 2 4 5, 1 it's 2 not a 4 2 detour, 4 it's 5. a side trip. I think it's a नहीं, अनुज डिटूर नहीं है ये। डिटूर की एक बार डेफिनेशन चेक करो। See, it's basically following the prime path ना। A longer route, नहीं, basically it should follow the prime path, but it should not consider all the edges in prime path। ये इसमें consider हो रहा था। okay, but eventually joins the main path, ठीक है। 1 2 3 4 5 would be a detour, correct, agreed। 1 2 3 2 4 5, it's a side trip again। 1 2 1 5 नहीं यार, वो नहीं। 1 2 3 2 4 3 5, 4 5, ये सही, ये वो हो गया, ये मेन पाथ पे वापस आ गया। डिटूर मेन पाथ, मतलब मेन जो पाथ होता है वो पाथ चूज नहीं करता डिटूर। राइट। 1 2 देन आइदर यहाँ से शिफ्ट होके आ गया, दैट्स ओके। अगर ऐसा भी होता 1 2 3 2 देन 4 5 देन आल्सो 1 3, लाइक 1 2 3 2 अगेन 3 4 5, तो यहाँ अगर 3 होता तो वो कंसीडर हो जाता सेकंड ऑप्शन में। ओके, लेट्स जस्ट गो डाउन। which test case will fail, let's just go भी फंक्शन क्या कर रहा है। अपडेट नेम चेंज करेगा, स्टेट चेंज करेगा, टू स्ट्रिंग वोटर आईडी नेम, और इसको प्रिंट करेगा, ठीक है, स्टेट को। नाउ सपोज वोटर बनाया, ये किया, इसका नेम अपडेट करके रोज कर दिया। अभी वी डॉट टू स्ट्रिंग्स विल रिटर्न ई, ये फिर रोज और बिहार, ये रोज और बिहार करेक्ट। नाउ इसका स्टेट यूपी कर दिया, तो ये फिर राज और फिर यूपी, ये राज यूपी, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये राज होना था, तो ये गलत हो गया ऑप्शंस। ये असर्ट नॉट नल, तो ये नॉट नल ही है। 3 is correct, is it? हाँ 3 इज करेक्ट। नाउ लेट्स गो टू फोर्थ, तो ये आ जाएगा E1110 राज देन यूपी,
तो इसमें भी यूपी ठीक है, ये आईडी ठीक है, ये राज चेंज नहीं किया, रोज ही रखा उसको, तो ये भी गलत है। 2 और 4, और ये नॉट नल वाला है क्योंकि कुछ भी रिटर्न करेगा एकदम, नल रिटर्न नहीं करेगा कभी, कुछ तो रिटर्न करेगा, पर ये सब नल हो गए, स्टिल वो रिटर्न करेगा, जैसे स्ट्रिंग रिटर्न कर, नल नहीं आ रहा। देन व्हाट्स दिस, फाइनाइट स्टेट मशीन, ओके। The maximum number of element can be stored in the buffer is 2. Therefore, either null or object. Buffer is a linear data structure. The front end remove from the end of buffer. यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, तो Q यूज कर रहा है। Let's go with this. Null. Suppose बफर पूरा नल है, तो क्या है, नल नल, करेक्ट। ये ऐसे मान लो, ये हो गया फ्रंट एंड, ये हो गया बैक साइड। नाउ अभी हमने उसमें इंसर्ट किया, तो वैल्यूज कहाँ इंसर्ट होगी, यहाँ पे ना, क्योंकि ये फ्रंट साइड है, मतलब बैक से आएगा, ये नल रहेगा तो यहाँ फ्रंट में ऐड होगा। तो इनिशियली नल नल था, ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि दो ही की कैपेसिटी है, तो ये वाला नल आगे जाएगा और यहाँ पीछे एक नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा, so it should be obj, null, ओके। ये एक पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, ओबीजे ये तो ओबीजे ओबीजे। फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि लास्ट वाले का नल हो जाए, ये ओबीजे हो जाए, है। तो दैट्स अगेन नल नल, और एक ओबीजे एक नल, और दोनों ओबीजे। दीज आर द 3 पॉसिबल स्टेट्स। और इज फुल इज अ गार्ड फॉर, इज फुल क्या करेगा, लेट्स सी, रिटर्न्स ट्रू इफ बफर इज फुल। तो सपोज बफर ये वाला इनिशियल बफर है, क्या लिस्ट का साइज कैपेसिटी के बराबर है, लिस्ट का साइज इज 0, सो इज इट सेम विद कैपेसिटी, नो। और ये बोल क्या रहा है, ट्रांजिशन फ्रॉम ओबीजे नल। सपोज ओबीजे नल ये है, लिस्ट की कैपेसिटी हमारी कितनी है अभी, इनिशियल वो कैपेसिटी 2 है, बस लिस्ट का साइज क्या है, 1, करेक्ट। तो साइज फुल है, साइज है 1, तो 1 डबल इक्वल टू 2 विच इज नॉट ट्रू, तो अगेन वो फॉल्स आएगा। Why is it? ये मे भी ये रॉन्ग ऑप्शन होगा, ये चेक करो एक बार, मे भी डिस्कोर्स पे नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं, वो छोड़ अभी। ठीक है, एक सेकंड, बस एक चीज देखना, लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। ये चेक करना एक बार, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और मे भी अगर है तो एक बार वो भी चेक कर लेना, नॉट श्योर अबाउट दिस। लास्ट टर्म का भी याद नहीं था। ये ट्रांजिशन जो हो रहा है, वो उल्टा अगर होता ना, ये यहाँ होता और ये यहाँ होता, तो वो रिमूव मेथड से कॉल होता। ये है इंसर्ट मेथड का है, ओके। नाउ प्राइम पाथ्स, तो प्राइम पाथ के लिए अगेन सेम थिंग जो लास्ट टाइम रिपीट करी थी, L1 लिख लो, 1 2 2 3 2 5 3 2 3 4 4 2 5 6, 6 is the final state। L2 में 1 2 1 2 3 1 2 5 then 2 3
2 3 2 हम्म 2 3 4 हम्म 2 10 2 5 6 हम्म 3 2 3 हम्म 3 2 5 3 2 5 हाँ ओके 3 4 2 3 2 5 3 4 2 3 4 नहीं सॉरी नो 3 then 4 2 3 or 4 to 5 करेक्ट correct now just go to L3 एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पे है अभी लास्ट नोड 6 है ना तो 6 जहाँ पे आएगा वहीं पे ही आएगा दैट्स इट हाँ उसके अलावा कुछ नहीं नहीं अभी और कहीं नहीं आएगा L3 so what is L3 1 2 3 3 से 2 टू नहीं टू आया नहीं सकता क्योंकि रिपीट हो गया तो टू नहीं आएगा यहाँ पे ये कैंसिल स्टेट है ना देन 1 2 3 4 4 and 1 2 5 6 2 3 4 2 4 2 then 3 4 2 hmm, then 3 2 5 6 3 4 2 3 star 3 4 2 5 4 2 3 2 ये पॉसिबल नहीं है तो 4 2 3 4 स्टार then 4 2 5 6 exclamation ठीक है एक मिनट 4 2 3 2 पॉसिबल नहीं है सही बोला फिर 4 2 5 6 कितने आए यार अभी और है अभी और एक स्टेज और 3 नीचे 4 5 6 7 8 8 आ रहा है क्या L3 में नहीं नहीं अभी एल एल हाँ अभी L4 और निकालना पड़ेगा ना ना L4 और लिखा हाँ तो 1 2 3 4 2 which is again not possible है then तो ये भी एंड हो गया यही तो 1 then 2 3 4 वही के वही एंड हो गया इज इट हाँ वो उसको हम वो नहीं कर सकते एक्सटेंड then 3 4 2 5 3 4 2 5 6 that's all तो अभी पाथ लिख लेते हैं वो 3 4 2 5 6 ये वाले फिर सारे एक्सक्लेमेशन वाले और ये लिखने हैं then है 4 2 5 6 ये वाला ऑलरेडी कवर्ड है तो उसको नहीं लिखेंगे 4 2 3 4 4 2 3 4 3 4 2 3 then 2 3 4 2 1 2 5 6 1 2 एक 3 मिनट 4 2 3 4 2 कैसे आया ये 2 रहा ना 4 हाँ ठीक है वो भी स्टार हो रहा है हाँ गॉट इट फिर 1 2 5 6 और 1 2 3 4 then बट 3 2 then है 3 2 3 3 2 3 रिपीट नहीं हुआ 3 2 3 2 5 6 2 5 6 रिपीट हो चुका 2 5 6 नहीं आएगा 3 2 3 से 2 3 2 हो रहा है 2 3 2 2 3 2 नहीं हो रहा है हाँ नहीं हो रहा ना रिपीट मैं एनीथिंग 5 एल्स हो रहा है नहीं 5 6 हो रहा है नहीं और कुछ नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 है हाँ 8 ही आ रहा है एक बार 9 है मे भी एक बार चेक कर लेते हैं 1 2 2 3 एक सेकेंड 1 2 2 3 2 5 3 2 3 4 4 2 5 6 ठीक है 1 2 3 1 2 5 ओके नाउ 2 3 2 पे बात खत्म and 2 3 4 now 2 5 6 that's and 2 3 2 3 and 3 2 5 okay now 3 4 2 and 3 4 5 यहाँ एक 3 4 5 मिस कर दिया सॉरी 3 4 6 और समथिंग
3 to 4, 3 4 to ना, इतना ही है क्या? 3 to 5, 3 to 3 तो किया हमने, क्या 3 to मिस? 3 to 6 5 yes, एक सेकंड, 3 4 2, हाँ ठीक है, नथिंग, ठीक है। देन फिर 4 to 3 and 4 to 5, okay. Then 1 to 3 to 1 to 3 4, 1 2 3 4 and nothing else. 1 to 3 2, which is not possible, okay. Then 1 to 5 1 to 5 6, 2 3 2 is again nothing. 2 3 4 2 3 4 2, 2 5 6 2 5 6 already done. 3 to 3 already done. 3 2 5 3 2 5 6, okay. 3 4 2 3 and 3 to 4 5, okay. Then 4 to 3 4, then 3 2 is not an option क्योंकि वो cancel हो जाएगा. 4 to 5 4 to 5 6. Now ये now 1 to 4 1 2 3 4 1 2 3 4, then 2 का option है तो वो cancel हो जाएगा. ये done ये done ये done ये done, and then 3 4 2 5 3 4 2 5 6 and this all, okay. So 1 2 3 4 5 6 7 8, just a minute. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. We forgotten to write this. 3 to 5 6 ये लिखा हुआ है हमने नीचे? नहीं. ठीक है, 9 पेयर्स आ रहे हैं. 3 2 5 6 एक्सक्लेमेशन मार्क ना. वो मिस कर दिया लिखते टाइम हमने. ठीक है. Now how determine the minimum number of test paths required for prime path coverage. Okay, this is a bit tough. ठीक है, इसके लिए I will consider कि ग्राफ बना लेते हैं. 1 से we can go to 2, 2 से either 3 और 5, 3 to 2 back, 3 to 4, 4 to 2 again back, and 5 to 6. ठीक है. Now ये this is a tough question यार, मर्ज करना होता है काफी. 3 4 2 5 6, 3 4 2 5 6, तो 1 2 3 का कोई स्टार्टिंग है तो मर्ज हो जाएगा ये रहा. So let's take a path 1 2 3 4. Okay, just a minute. 1 2 3 3 4 2 5 6 है ना फर्स्ट वाला. 3 4 3 ये देख 5 3 4 6. 2 5 6. तो हमने तो ये दो ऑप्शंस को मर्ज कर दिया. Now this ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मतलब को ढूंढना होता है. एक वो जो होता है इसमें पाथ दे दिए जाते हैं वो इजी पड़ता है. चलो थोड़ा सा टफ है. 1 2 3 4 2 5 6 you have to find minimum number. करेक्ट. अभी क्या है 2 3 4 2, तो 2 3 4 2 भी कवर हो गया, तो ये 3 एक में ही कवर हो गए. देन 1 2 5 6 2 ये 3 4 2 भी कवर हो गया. हाँ ये 2 3 4 2 भी कवर हो गया. देखो नाउ 1 2 5 6 ये तो एक डायरेक्ट पाथ है, इस पे कुछ नहीं कर सकते है ना. नाउ 3 4 2 3 1 2 5 6 तूने कहाँ से लिखा? अच्छा ठीक है. ये वाला 1 2 5 6 ठीक है सही है. गॉट इट. नाइस. नाउ अभी एक और पाथ बनाते हैं. सपोज 1 2 3 4 2 3 4, then 2 5 6 2 5 6. ठीक है. नाउ इसमें क्या हो गया 3 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3 5 4 2 3 सॉरी 4 2 3 4 4 2 3 4. जस्ट चेक ये पाथ वैलिड है या नहीं. 1 2 3 4 2 3
4 2 5 6, ठीक है, पाथ वैलिड है। इसमें क्या कवर हो गया, ये हो गया 3 4 2 3 एंड 4 2 3 क्या 4। क्या अनुज ये कैसे किया 1 2 3 4 2 3 4 2 5 6? ये जस्ट यार जल्द एक अजम्पशन लेके मतलब देख के बनाना होता है पाथ, जिसमें मैं वैसे कोई नहीं, मैंने स्टार्ट किया, हमेशा पाथ 1 और 2 से स्टार्ट होगा, करेक्ट। हम्म अभी ये जो एक 1 2 5 6 वाला पाथ है, ये तो डायरेक्ट है, ये तो हम ले चुके। हम्म ऑन दिस साइड 1 2 3, तो जस्ट 1 2 3 राइट किया, फिर मैंने देखा 3 से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन एक था जो आगे बढ़ा सकते थे, 1 2 3 4 2 3 लिख लिया। फिर हम्म मैंने देखा 4 2 3 इतना मैच हो गया, तो लास्ट में एक 4 भी आ जाएगा, तो ये 4 भी ऐसे रैंडमली लिख दिया है, ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया, ये दोनों मैच हो गए। 4 2 3 4 यहाँ तक। 1 मिनट 1 2 3 4 2 3 4 यार कौन से तो मैच हुए, कौन से तो मैच हुए? 1 2 3 तूने किया पहले, फिर उसके बाद तूने जस्ट सी दिस, मैंने 1 2 3 लिखा क्योंकि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। गॉट ओके, इट। नाउ 3 से ये देखो, ये वाला जो है ना, ये स्टार्ट हो रहा है, तो लेट्स राइट दिस 3 4 2 3। ओके, 3 4 2 3, ठीक है, हाँ तो ये कवर अप हो गया। नाउ हम्म जस्ट इसमें देखो 3 4 2 3, ये 4 2 3 है, ये 4 2 3 है, 4 लिस्ट में बच रहा है, तो लेट्स ऐड 4 2, एक 4 भी ऐड कर दिया, ठीक है। एक एक मिनट 1 2 3 4 2 3 यहाँ तक देख, इतना समझ आया, हम्म ठीक है। अभी तो मैच कर कि हमको ऐसे पाथ बनाने होते हैं जिसमें ये जो सारे हैं वो कवर हो जाए और हमारे मिनिमम मिनिमम पाथ्स यूज हो, ठीक है जो मिनिमम बेस्ट पाथ वही होता है, ठीक है। हाँ, समझ। 1 2 3 स्टार्टिंग से लिखा, 3 4 2 3 यहाँ से लिया, देन हम्म 4 2 3 इतना कवर हो गया, लास्ट 4 बच रहा था, तो यहाँ एक 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड किया, गॉट इट। ये वाला पाथ भी कवर हुआ, ठीक है। हम्म अभी क्या बच रहा है हमारा, 4 से अगर हम वापस 2 पे आएंगे, 4 से 2 पे वापस आ सकते हैं क्योंकि कोई और रूट नहीं है हम पे, तो हम्म 4 से 2 पे वापस आए। अब 2 से हम ये देखेंगे 3 2 3 वाला पाथ है, करेक्ट। हम्म तो 2 3 2, ओके। 2 3 2 3। हाँ, तो इसमें देख हमारा ये हो गया, 2 3 2 वाला कवर हो गया, ठीक है। हम्म अभी बच क्या रहा है, सही है 2 3 2 अभी अभी देख, एक नोटिस कर, लास्ट में 3 2 आ गया और हम पे 3 2 3 है, सिर्फ 3 ऐड करना है, तो ये पाथ भी हो जाएगा, करेक्ट। हाँ तो एक 3 और ऐड कर देंगे। ठीक है कर दिया। नाउ 2 5 6, 3 के बाद 2 5 6, एक बार ये पाथ चेक करना पड़ेगा सही है कि नहीं। 1 2, एक सेकंड, ये मैच कर लो, 3 4 2 5 6, 3 4 2 5 6, 4 2 3 4, 4 2 3 4, 3 4 2 3, 3 4 2 3, 2 3 4 2, 2 3 4 2, 1 2 5 6, 1 2 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 2 3, 3 2 3, 2 3 2, 2 3 2, 3 2 5 6, ओके, सारे कवर हो गए। Let's check कि ये this path is valid or these paths are valid or not. 1 2 3 4 2 5 6 correct. 1 2 5 6 also correct. Now 1 2 3 4 2 3 4 2 3 2 3 2 5 6. This is again valid. Not sure about this thing. ये इतना repetition हुआ. Just इतने not sure about this. क्रेजी क्वेश्चन यार। ये दिस क्वेश्चन इज टफ ना, ओनली मतलब ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आते, ये क्वेश्चन है जो टफ आएगा, इसका आंसर चेक करना 3 होगा। क्या भेजा दिनकर?
डीएलपी का देखा है, एक बार इसको जरा चेक कर लेना ना, लास्ट वाला जो 3-4 क्वेश्चन है वो फॉर्मूला सही है कि नहीं। दिनकर भाई ये चेक करो एक बार, ये सही है टेस्ट पाथ इफ यू रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट। टेस्ट पाथ में सारे कवर होने चाहिए और क्या। 4 है बट मे बी यहाँ 4 आ रहा है, हमारे 3 में ही कवर हो जा रहा है। अरे तो ये डिस्कोर्स पे भी चेक कर लो एक बार, शायद अपने टर्म का है क्या ये। ये है टर्म बताओ। May 24। डिस्कोर्स देख लो, कुछ एरर थी पेपर में, एक पेपर में कुछ आ रहा था दिक्कत, अनुपम करा रहा था ना। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। Now from the code identifying the best इसको presented finalize कर method लेना। presented by the given CFG, ठीक है। So ये क्वेश्चन 12 to 14 इसी का है ये वाला, ठीक है। अभी now let's copy this graph now, copy and paste it here। अभी ये देखो CFG देख के क्या दिख रहा है जलज, ये देखो इनिशियली ऐसा हो रहा है कि स्टार्टिंग में कोई आ रहा है, फिर यहाँ एक वो लगी हुई है इफ एल्स, करेक्ट, एक इफ एल्स है स्टार्टिंग में, राइट। है ना। पहले और इफ है, उसके बाद फॉर है। हाँ मे भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक लूप है, तो कोई यहाँ नॉर्मल लूप भी हो सकता है, एक फॉर या वाइल कोई भी एक नॉर्मल लूप है, फिर एक और अंदर लूप है और फिर ये एंड है। लेट्स मैच इट। स्टार्टिंग में आया फॉर, फॉर के लिए कुछ फॉर आया, ये फॉर चल रहा है, इफ फॉर की कंडीशंस फेल्स तो ये हो गया ना, इफ फॉर के अंदर जाते हैं तो यहाँ आओ, यहाँ पे तो यहाँ कहीं इफ एल्स नहीं है, जिसमें भी इफ एल्स है वो सारे ऑप्शंस गलत है, ठीक है, क्योंकि पूरे कोड में हमारे कहीं इफ एल्स नहीं आएगा। तो ये इसमें इफ है तो ये नहीं आएगा हमारा 3 या 5। नहीं नहीं नहीं, वो हो सकता था, या तो स्टार्टिंग ही इफ से होगी फिर, या तो स्टार्टिंग इफ से हो फिर। अच्छा सॉरी, फिर ये ऑप्शन है, लेट्स लेट्स कीप इट ओके। बट वो भी नहीं होगा क्योंकि फिर ये अगर इफ होगा ना तो ये रिपीटेशन नहीं आएगा कभी, तो ये हमेशा एक लूप है। दिस विल ऑलवेज बी अ लूप, दिस थिंग 2 3 2 3 2 3, ठीक है। तो जितने भी इफ वाले हैं यू कैन डायरेक्टली कैंसिल आउट, तीनों में इफ था, एक ही बच रहा वो सही ऑप्शन है, बट बाकी चेक कर लेते हैं। यहाँ आया ये फॉर लूप, फॉर लूप में एंटर हुआ, देन अगेन वाइल लूप, तो दिस थिंग विल गो ऑन। और ये बाहर वाला जो है फॉर लूप है, जो अंदर वाला है वो वाइल लूप है, ठीक है। एंड वाइल लूप या फॉर लूप से ऐसे एग्जिट हुआ तो कुछ फिफ्थ पे ये वाली पी एंड जे वाली कुछ कंडीशंस है, सम वैल्यू असाइनिंग एंड देन सिक्स पे जाके वो प्रिंट हो रही है। गॉट इट। ये एक दो क्वेश्चन करोगे तो आदत हो जाएगी इसकी, ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट पाथ रिक्वायर्ड फॉर नोड कवरेज, नोड कवरेज के लिए देख लेते हैं 1 2 3 4। अच्छा एक सेकेंड, एक तो ये पाथ होगा, दिस इज अगेन नॉट टू बी चीटेड, 1 2 8 9 ठीक है। लेट्स चेक, मतलब अगर उससे भी कम पाथ हुए तो मिनिमम चाहिए ना हमको। 1 2 3 4 2 3 5 देन 6, ये ऐसा घूम के ऐसा चला जाएगा। गॉट इट। इट्स माय लाइक गॉड। ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा, सॉरी या ऐसा समझ ऐसा ऐसा ऐसा, देन एक पाथ ये जाएगा ऐसे में, ये पूरा खत्म हो जाएगा और एक और पाथ ऐसा जाएगा फिर ऐसा, ओ सॉरी ऐसा घूम के देन दिस वे, क्योंकि 5 और 7 एक साथ कभी कवर नहीं होगा, तो इसलिए एक एक पाथ इस साइड एक पाथ इस साइड, ये गलत है, तो दो पाथ हो गए, डन।
साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी का आई थिंक फॉर्मूला था नोड edges minus node plus 2p or something like that. Let me check. हाँ, edges minus node plus 2p. 2p is again your component, but हमारे पूरे कोर्स में उसको 1 कंसीडर किया गया है ऑलमोस्ट हर जगह, अदरवाइज मेंशन होगा स्पेसिफिकली. तो एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 माइनस नोट्स कितनी है? 9 प्लस 2 प्लस एक मिनट प्लस 2p. हाँ, वो 2p को नॉर्मल हमारे पूरे कोर्स में 1 कंसीडर किया गया है. कहीं अगर होगा तो स्पेसिफिकली मेंशन होगा तो p को मतलब p की वैल्यू 1 ही आएगी हमेशा. हमेशा. एक बार ये एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये मिस्टेक हो जाती है कभी भी, देख लेना. ये 11 माइनस नॉन नोट्स है, क्लियरिंग नंबरिंग है, प्लस 2. 11 minus 2 is 2 plus 2 is 4, so answer is 4. Okay, what du pairs? Du again def use pair for the variable x. Let's go for it. Definition कहाँ है इसकी? एक जगह. Then और कहीं x डिफाइन हुआ है? मिला? 2 3. नहीं, ये डेफिनेशन जस्ट चेक करो. एक्स LHS कहाँ पे है, मतलब LHS साइड कहाँ यूज हो रहा है एक्स, या डिफाइन कहाँ पे हो रहा है? तो एक तो 1 पे डिफाइन हो रहा है, देन एक 7 पे. वो एज पे भी हो रहा है ना तो फिर. नहीं, अच्छा एज वो पे, हो रहा है. ठीक है समझ गया. हाँ. एज पे यूज हो रहा है. ठीक है, तो डेफिनेशन है 1,7, करेक्ट. हम्म. देन यूज ऑफ एक्स कहाँ कहाँ है? 2 3 2 4. 2 3 राइट. 2 3 2 4. 2 4. ओके. नाउ इस साइड 4 पे भी यूज हो रहा है, सी दिस 4. देन यहाँ 3 4 पे 3 5 3 3 5 5. 3 5 पे यूज हो रहा है, 3 6 पे यूज हो रहा है, 3 5 पे यूज हो रहा है, देन 3 6 3 पे पे यूज भी हो रहा यूज. 5 पे और 6 पे भी यूज हो रहा है ना. है, 5 पे और 6 पे भी यूज हो रहा है, एंड देन 8 पे भी यूज हो रहा है. राइट. 2 3 हो गया कवर, 2 4 हो गया कवर, 4 हो गया कवर, 3 5 3 6 हो गया. 3 5 3 6 हो गया, 5 6 8. 5 6 एंड देन 8. ठीक है. नाउ जस्ट अभी उनके वो बनाने हैं 7 पेयर्स. पे भी हो रहा है ना एक्स. नहीं, उस पर डिफाइन हो रहा है ना, अच्छा उस पे डिफाइन हो रहा है. ठीक है. अभी 1 के जो पेयर है वो सबके साथ बन जाएंगे क्योंकि इनिशियल है. तो ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 के साथ ही 8 पेयर हो जाएंगे. ठीक है, 1 कॉमा ये सब तो टोटल हो जाएंगे 8 पेयर्स. ना जो 7 के साथ पेयर आएगा वो सिर्फ ये वाला आएगा, 7 8. राइट. तो 7 7. कॉमा 8 ये हो गया तुम्हारा 1 पेयर, तो टोटल हो गया 9 पेयर्स. ये अभी मैं भी चेक कर रहा ये था. सब पेयर गलत हो रहा है यार. ये फाइनल वाला नहीं लेते हैं मुझे लग रहा है मुझे. कौन सा वाला? ये वाला? ये नहीं, ये प्रिंट वाला जो है, जो प्रिंट पे नहीं, तुमने दिया लेते 8 पे. लेते वो वाला भी यूज करते हैं. नहीं यार 9 तो आना चाहिए ना. दिस इज. मैं भी एक बार भाई डिस्कोर्स चेक करते जाना. वो फाइनल वाला नहीं लेते हैं मुझे लग रहा है. 2 3 2 4 देन 4. प्रिंट तो लेते हैं ना दिनकर. लेते
ये एक बार भाई डिस्कोर्स चेक कर लेना। ठीक है। है ना? तो अगर ठीक है, कुछ अभी हो जानते सही तरीका तो ये है, अभी पता नहीं आंसर में क्यों है। ठीक है। अभी डीयू पाथ जो होते हैं वो दे मस्ट बी डेफ क्लियर। मे भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ तरीका तो यही है। जस्ट अ मिनट। हम्म ठीक है, डीयू पेयर्स तो यही है। नॉट डेफ क्लियर होना चाहिए, मतलब वो कभी वापस से रीडिफाइन नहीं होना चाहिए। तो वन वाला देखो, 1,2,3 ये यूज हुआ है। वन, हम्म देन 1,2,4 टू, हम्म देन 1,4 अगेन सेम यूज हुआ है 3, 1,35 ये 4। हम्म ठीक है। 1,24 है ना, सॉरी 1,24 1,35 फिर हाँ कौन ये से चार? चारों, ये चार 1,2,3, 1,24, 1,4 एंड 1,35। 1,4। ओके। ओके, ये हम्म चार हो गए। देन 3,6, 1,36 तो ये भी आएगा, ये 5 हो गए। ठीक है, देन 1,5 वो भी आएगा, 1,6 भी आएगा। बस इतने ही आएंगे। ठीक है, 4 1 के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 1 के लिए 7 हो गए, और 7 के लिए ओनली एक ये वाला हो गया, तो 7 के लिए 1 आ गया। डैम भाई। अच्छा सॉरी यार, डैम, सॉरी 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 सॉरी। डीयू पाथ में माय बैड, कुछ गलत गलत बता दिया। डीयू पाथ में वो सारे कवर होने चाहिए, मैं डेफ यूज वो बता दिया यार। डी वो एक और डेफ क्लियर पेयर्स होते हैं जो, सॉरी, डीडी पेयर से कुछ तो भी होता है, वो बहुत डेविड। DUDF तो होता है, तुमने F हाँ वाला बताया है। हाँ, डीएफ पेयर्स बता दिए, करेक्ट वही कुछ। तो एक पाथ अगर जनरेट करेंगे, एक पाथ तो ये आएगा हम्म 1 2 4 8। अब इसमें हमारे कौन कौन से कवर हो गए, 1 2 4 और 8 कवर्ड। ये डीएफ पेयर वाला लास्ट पेपर में था ना? ये वाला ना, डीयू पाथ वाला ना, डीयू पाथ। वो शायद डीएफ पाथ था, अभी रिविजिट कर लेंगे। डोंट वरी। शिट। ठीक है, ठीक है। डीयू डीयू पाथ में एक तो ये पाथ हो गया। 1,2,4,8। देन अभी दूसरा ये पाथ होगा, और तीसरा ये पाथ होगा। ठीक है, तो ये हम्म 3 पाथ फिक्स है। देन 1 2 3 5 7 8, 1 2 3 6 7 8। अभी इसमें देखो, 1 2 3 है, 1 2 3 हो गया। तो 1 2 4 है, 1 2 4 भी यूज हो गया, 4 भी यूज हो गया। सॉरी, ये बस इतना ही तक आएगा। कहाँ गया, ये 8 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि 7 में रीडिफाइन हो गए। राइट। तो ये हो गया, और एक और पाथ आएगा 7 8। व्हाट एल्स इज रिमेनिंग, 1 2 3, 1 2 4 4 3 5 3 6 5 1 6। 4 पाथ है यार, ये भी मैच करना पड़ेगा। जरा एक बार डिस्कोर्स पे खोल के चेक करो ना, मेरे को लिंक भेजो जरा। पता नहीं यार, दिन का लिंक भेज।
इसका तब तक वैलिड टेस्ट पाथ देख लेते हैं, आ जाओ इजी। वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एसटी के पेपर में बहुत मिस्टेक्स होती थी हमारे टाइम पे भी। 1 to 4 हाँ 6 गलती 1 to 4 6 करेक्ट पाथ है। देन क्या है 1 to 4 5 6 अगेन करेक्ट पाथ है। देन क्या है 1 3 6 1 3 6 एंड देन 1 2 4 6 ये भी Correct. करेक्ट। 1 1 3 3 6 1 2 2 4 4 5 ये 5. नहीं है, क्योंकि ये It वो is नहीं not है, क्या ending बोलते हैं। in 6, is it? हाँ, ये 5 के अगर 6 भी आ जाता तो सही रहता। ये सब्जेक्ट ही नहीं है डिस्कोर्स पे भाई। ओ मे बी एक्सेस हटा दिया, लेट मी चेक। अच्छा नहीं मिल गया, रुक जाओ। हाँ ये था, वो लॉग कर रखा है इन्होंने। भेज दिया है, अब इस पे बैठ के खोजते रहो। कहाँ गया कोर्स इसमें, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। PYQ clarification DU pairs। किसी ने पूछा जरूर होगा साले ने। कौन सा पेपर है हमारा? May 24। मई जून जुलाई, राइट? करेक्ट। क्या बोल के मिलते हैं भाई, आज तक आई हैवंट सर्च्ड। मैंने यार ग्रुप बड़ा शांत हो रखा है। कल मे तो इतना PYQ। एकदम बवाल कर रखे थे। वेट रिकॉर्डिंग। ET PYQ May 24 ना। लाइव सेशन लिंक्स May 24, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। May 2025 का तो PYQ नहीं मिल रहा है भाई दिस। मई 2025 का खोज रहे हो? नहीं 2024। हो सकता हो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये रहा PYQ जुलाई 2024। गॉट इट। बट नो नथिंग। Oh, doubt in a PYQ. This question is from July 24. Couldn't say। ये एक बार और मैच करना पड़ेगा ये दोनों को। दिनकर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द 308 क्वेश्चन, बाकी सब सही है। 308 वाला पूछ कर रहा है। How many steps does it take to complete one epoch of training? ठीक है, तो एक इपॉक ऑफ ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में कितने स्टेप्स Just a लगेंगे, minute। इक्वल टू व्हाट? टोटल